الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آپ شرح صاحب ہی سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے. حضرت حافظ و قاری کمال اختر دستگیر صاحب سے بہت ہی پیارے اور اچھوتے انداز میں نعت شہ ابرار منقبت غوث پاک اور حافظ اشفاق احمد علیمی دستگیر سے آپ نے بھی نعت منقبت آپ نے سماعت کیا. بہت مبارک بات ہے اس گاؤں کی آبادی کے لوگ جنہوں نے سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت نے ان کے تذکرے کو اور ان کی محفلوں کو سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں اس کے غوث پاک کے صدقے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے محبوب کائنات فخر موجودات وہ پیغمبر اعظم جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. یہ اس پیغمبر کی بارگاہ میں جن کے طلبوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا: جن کے طلبوں کا دھوت ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ. آئیے اس پیغمبر کی بارگاہ میں جس پیغمبر کے لاڈلے نے بغداد کی سرزمین پر ولایت کا پرچم لہرایا تو تمام دنیا کے ولیوں نے اپنی گردن جھکا دی. آئیے اس غوث کے نانا کی بارگاہ میں دل لگائیں مدینے کی طرف اور باواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین شعر مصطفیٰ کے عشق میں سن لیں، تھوڑا مزاج بنائیں. شاعر کہتا ہے کہ جنزیر بولتی رہی اور در بولتا رہا. شب معراج کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے: جنزیر بولتی رہی اور در بولتا رہا. پلٹے مصطفیٰ تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. اور آئے گئے نبی جو شرع عرش بار بار، آئے گئے نبی جو شرع عرش بار بار ہما سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا. اگر آپ بھی بولنے کا طریقہ ہو تو بول دیں یا رسول اللہ. اور تواز سے ابو اسرا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سنیوں کے حوالے سے کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے پار، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے پار. ہما نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، ہما نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. اور امام عشق و محبت بریلی کا امام احمد رضا خان سنیت کی جان، اہل سنت کی پہچان بریلی تھے. جب اپنے اس حویلی سے پکارا اعلیٰ حضرت کی سیرت نے ہمیں یہ بتایا. اعلیٰ حضرت نے جب سرکار غوث اعظم کی عقیدت میں اپنے قلم کو اٹھایا
तो फरमाया तो क्या फरमाया, सर भला क्या कोई जाने की हो कैसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर साथ दे देंगे तो 5 मिनट की गुफ्तगू 5 घंटे के बराबर हो। लेकिन इजाजत के बाद दे दे बोल दे फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने की हो कैसा तेरा, अरे औलिया मस्ते हैं वो आंखें तलवा तेरा, बोलते हैं वो आंखें तलवा तेरा। अब आओ नबी के इश्क में झूम कर सुनने वालों, बरेली का इमाम अहमद रजा खान गौस की अकीदत में कलम को उठाया तो अपने कलम को यूं तोड़ा कि वैसे बाप तेरा ना तो कोई जलवा है, ना तो तेरा कोई मर्तबा है, ना तो तेरा कोई ऐसा तो दुनिया में कोई सानी है, बल्कि तू जब आया तो जमाने के वली ने पुकार उठा। खसारान की चौपाइयों में आला हजरत ने यह पैगाम दे दिया था कि ये लोगों सुनो सुनो, जब हिंदुस्तान का राजा, राजाओं का राजा, सबसे बड़ा महाराजा, हम सबका ख्वाजा, जब गौसे पाक की अकीदत में यूं फरमाया था, ए मेरे गौस, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक या अल्लाह, बेशक बरेली का इमाम अपने शेर में यूं कहा था, और हिंद का राजा अजमेर की धरती से यूं कहा था, ऐ मेरे गौस, तूने तो ये फरमाया था हमारा जो कदम है वो किसी सारे वलियों की गर्दन पर है, सारे वलियों की गर्दन पे है। दुनिया का कोई भी वली हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जर्मनी हो या जापान हो, सीरिया हो या मलेशिया हो, अरब हो या कोई कंट्री हो, दुनिया का कोई वली हो, गौसे पाक का कदम सारे वलियों के गर्दन पे है। लेकिन मेरा ख्वाजा फरमाता, ऐ मेरे ख्वाजा ने फरमाया तो यूं फरमाया, ऐ मेरे गौस, आपका कदम मेरे गर्दन पे नहीं, बल्कि आपका गर्दन हमारे आप पे भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा है, बेशक मेरा गौस ऐसा गौस है। थोड़ी देर आप सुने, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये मेरे मानने वालों सुनो, जो मेरे इश्क में जीता है और जो मेरे इश्क का प्रचार करता और जो मेरे इकरारनी को समाने को बताता, हम किसी और के चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि गौस के चाहने वाले। फरमाता है मौत उसको गवाए से फंस जाएगी जब तक उसको कलमे शहादत नसीब। उसने फरमाया कि ए मेरे अकीदतमंदों, ऐ मेरे चाहने वालों, सुन लो कि मैं तो पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता जैसे एक किसान अपने हथेली पे सरसों का दाना देखता है। मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेलियों पे ऐसे ही देखता। और मेरा गौस फरमाता, अब वो इश्क का जुमला सुनो, गौसे पाक की अकीदत में बैठने वाले पर कहीं के सुन्नी मुसलमान सुनो। मेरा गौस फरमाता, अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, अगर मुझे मदद के लिए पुकारते तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूं। मेरा चाहने वाला
मेरे गौस का थोड़ा बचपना भी देख लो। हमारे भी घर बच्चे होते हैं, आपके भी घर बच्चे होते हैं, सारे लोगों के घरों में बच्चे होते हैं, लेकिन आओ मेरे गौस का बचपना देख लो। वही मेरे गौस है, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अभी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उस्ताद के सामने बैठे हैं, इधर फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, ए बच्चों जगह खाली कर दो, आने वाला एक मुक़द्दस वली आ रहा है, आने वाला एक नबी का दीवाना आ रहा है, आने वाला एक अकीदतमंद आ रहा है। तमाम बच्चे जगह को खाली कर देते हैं। सरकार गौसे पाक कहते हैं कि तेरे जगह खाली हो जाया करती थी, आज हमारे और आपके घरों के बच्चे हैं, ना तो कोई जगह देने के लिए तैयार है। अरे गौस को, मेरे गौस को ये मर्तबा दुनिया वालों ने नहीं दिया था, मेरे गौस को मर्तबा मेरे अल्लाह पढ़ करके चले हैं, अपने माँ के गोद में बैठ गए और बैठने के बाद कभी अपने माँ के रुखसार के ऊपर हाथ दे रहे हैं, कभी माँ के चेहरे के ऊपर हाथ दे रहे हैं, कभी माँ के गाल के इस तरफ हाथ फेरते, कभी इस तरफ हाथ फेरते। आपके भी 5 बच्चे हैं, और अगर आपका बच्चा आकर के आपके गोद में बैठ करके आपके चेहरे पर हाथ फेरे तो बाप समझ जाता है कि मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है, मेरा बेटा कुछ बताना चाहता है। कि इसी तरीके से जब गौसे पाक अपनी माँ के गोद में आए और हाथ फेरना चालू कर दिए तो गौस की माँ फरमाती है, बेटा अब्दुल कादिर कहना क्या चाहते हो? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ये मेरी अम्मी जान, अगर आप सुनना चाहती है तो मैं बता दूं। सरकार गौसे पाक की माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर बता दो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अम्मी आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की माँ ने कहा कि बेटा तेरा मेरे ऊपर क्या एहसान है? अगर आपका बच्चा बचपने में ये कह दे, माँ मेरा आपके ऊपर एहसान है, बाप आपके ऊपर मेरा एहसान है, तो बाप यही कहेगा, खाना मैं दे रहा हूँ, एहसान तू जता रहा है, उंगली पकड़ के चलना मैं सिखा रहा हूँ, एहसान तू बता रहा है, खाना मैं दे रहा हूँ, कपड़ा मैं दे रहा हूँ, बोलने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तेरा मेरे ऊपर क्या एहसान है? सरकार गौसे पाक की माँ कहती है कि बेटा मैं ये मानती हूँ कि जब तू पैदा हुआ था तो बरकतें बहुत हुई थी, बगदाद के अंदर बहुत खुशहाली हुई थी, बगदाद के अंदर बरकतों का नज़ूल हुआ था, लेकिन तेरा मेरे ऊपर क्या एहसान है? सरकार गौसे पाक की माँ कहती है इतना। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अम्मी अगर आप इजाजत दो तो मैं बता दूं। इतना कहा था। सरकार गौसे पाक की माँ फरमाती है, बेटा अब्दुल कादिर बता इतना कहा था। मेरे सरकार ने फरमाया कि ये अम्मी सुन एक मर्तबा आपको अंगूर खाने का जी चाहा था और आप बाग के अंदर गई थी और आप हाथ बढ़ाई थी अंगूर को तोड़ने के लिए। ये मेरी माँ ये बता दे बात सही है या नहीं? सरकार गौसे पाक की माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा सही है, आगे बता क्या हुआ है? इतना कहा था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अम्मी आपके पेट में एक दर्द हुआ था। सरकार गौसे पाक की माँ कहती, हाँ बेटा दर्द तो हुआ था, लेकिन अब ज़बान खामोश मत करना, आगे बता क्या हुआ था? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी मुझे माँ